for the cultural program for one act play, which is for the classes 9 to 12, going to be start right now. We are going to begin with Akshat Mishra of class 9C, and we are going to portray the patriotism as our 50th August is nearby, and we are going to celebrate this day in a very grand celebration. So this is only a short part of 15th day celebration. We are going to start right now. Akshat Mishra of class 9C. Please come here on the stage. Hello brother. I know. Who are you? I have never seen you before. Are you a foreigner? You don't look like an Indian. From which country you are? My name is William. I am from New Zealand. What's your name and from which state of India do you belong? I belong from the UP, the traditional capital of India. Oh, so you are from UP, the capital of Indian traditions. Brother, I came here for my study on biochemical activities. But today night, I have seen many of the people here celebrating. Is today a festival? Holi, Deepavali, what is today? Many people are celebrating. I was sleeping, but instantly I got frightened. What happened? Brother, this is not a festival in India. This is the happiness because of one catch. Just because of one catch. But how? Like this. So why people are much happy? What happened because of this catch? You are asking what happened? This catch made us win the World Cup after 14 years. So what? Australians will lift the World Cup every almost year. So what? We have won the World Cup after 14 years. Our dream of 140 crore people became true. Oh, now I understood what happened. Thank you Team India and Surya Kumar Yadav for giving us a reason to smile after 48 years. A very big thank you from 140 crore Indians. Good morning everyone. My name is Alina Khurshid and I am from class 9A and I am going to perform my performance. Shehzadiyon Ki Bagawat is the theme, and the character which she is going to portray is of Britishers, rebellion girl and girl mother. तुम्हारे ऊपर ये जंजीरें बहुत ही अच्छी लगती हैं। सजाए मौत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्पीक अप। तुम्हारे फरार साथियों के क्या नाम है? आजादी। तुम्हारा क्या, तुम्हारी उम्मीद क्या है? आजादी। तुम्हें जानती हो तुम्हारी इस बगावत का क्या अंजाम होगा? आजादी। ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलने वाली थी, इसको हम सजाए मौत ही देंगे। हमारी बेटी को इन लोगों ने सजाए मौत सुनाई है। अगर एक बेटी अपने देश के लिए जान दे सकती है तो हर एक महिला इस देश की जान देने के लिए तैयार है। सभी को इकट्ठा करो, अब यहाँ पे ऐलान जंग होगी। हमें देखनी है आजादी, हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। सब ताज बड़े
Good morning everyone. Myself Anushka Sharma from class 10th. Today I am here to perform the act of Rani Padmavati. जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन दिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जोहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेंगे। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारा सूद, हमारा स्वाभिमान। जुब्बान के आगमन में एक और लड़ाई होगी, जो ना कभी किसी ने देखी और न सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगी। राजपूती ताकत में उतनी ताकत है जितनी की राजपूती तलवार में। जब राजपूत अपने मान मिट्टी और मान के लिए लड़ते हैं, तब उसकी तलवार की गूंज सदियों तक गूंजती है। असुरों का विनाश करने के लिए रानी को भी घर से उतरना पड़ा था, और रही बात डर की, तो डर नाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं था, और ये ही अलाउद्दीन की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी, और ये ही अलाउद्दीन की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। Good morning to all of you. Myself Anveshika Singh from class 9C. Oh, I am so tired because I am traveling from last night. But I am wondering that why this country is so much decorated. This is looking so beautiful. I am confused. Let me ask from an Indian person. Hello ma'am, who are you? From where you have came? Hello, myself Justin. I came from USA. I am confused that why your country is so much decorated today. What is happening today? Can you tell me please? Yes, I can tell you. Today is Independence Day. Our India got independence from the British on this day. Our brave freedom fighters as Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad and many more helped us from getting independence from all these. A short performances always held on this day in the colleges, societies to tell the importance of this day to the students, pupils. Oh wow, you are very great. Your freedom fighters and your country is very rich and great. I salute your country. Yes, thank you. I always feel very proud to born in this country. I have often heard something that you all say on this day. May I tell you? Yes, of course you can. मेरा भारत महान, जय हिंद, जय भारत। भगवान को पूछते हुए अहिल्याबाई होलकर, हे भगवान, लंबे समय से चले आ रहे इस युद्ध में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई रणभूमि में युद्ध लड़ रहा है। लंबे समय से चले आ रहे इस युद्ध ने ना जाने कितने बच्चों, ना जाने कितनी माओ की गोद सूनी कर दी, कितने बच्चों से पिता को छीन लिया। हे भगवान, आप बस इस युद्ध को समाप्त कर दे भगवान, समाप्त कर दे। अपनी अहिल्या की पुकार सुन ले, समाप्त कर दे ये युद्ध। सिपाही सूबेदार सर की खबर, मृत्यु की खबर लाते हुए सूबेदार सर की जय। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे सूबेदार युद्ध लड़ते लड़ते रणभूमि को प्राप्त हो गए। क्या
अनुमान भी नहीं लगाया। ये तीर तलवार हमारे बस की बात नहीं है। हम तो एक साधारण नागरिक हैं, ये हमसे नहीं होगा। किसने कहा नारियों की शक्ति ना पुरुषों से कम नहीं? उद्याल का नाम सुना ना तुम लोगों ने? उद्याल का नाम किसने नहीं सुना महारानी? वो जो आपकी रक्षा करते हुए मर गई। मेरी रक्षा नहीं, हमारी मातृभूमि की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। विदेशियों ने बहुत तरपाया उसे, परंतु ना उसने मेरे साथ ना हमारी मातृभूमि के साथ अत्याचार किया। यह कारण है कि ऐसी औरतें मरने के बाद भी अमर हो जाती है। हाँ महारानी, हम उनके प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लड़ेंगे, हाँ हम लड़ेंगे, हाँ हम लड़ेंगे। ठीक है, हम जरूर लड़ेंगे, परंतु पूरी तैयारी के साथ। सबसे पहले कोयली, तुम इन सबको शिक्षण दोगी। हाँ महारानी, मैं आज से इनको देना शुरू करती हूँ। हमारी नारी सेना का नाम होगा उद्याल सेना। Thank you. Good morning, dear teachers. Myself, Fiza Pathan from class 9A. भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कोर्ट ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम्स डिजाइन करता है और उनको पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने जी बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम अपना ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का तकदीरें पलटी कौन होगी? मुझे पता है मेरी आजादी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। बस एक बार हमारे गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर कर दे दो, मैं और पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 7.5 साल का था। तुम्हें क्या लगता है जो बच्चा कुर्बानियों के बीच में पला बड़ा हो वो तुम्हारी सरकार को माफीनामा भेजेगा? कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। और हाँ, अगर रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। मर कर भी न जाएगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। एनी लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐस्मा, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। थैंक यू। Character of social reformer Jyotiba Phule. She is going to convince her girl for education so that nation can be developed. Good morning to all of you. My name is Janvi Pandey from 11C. बेटा, क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है? लेकिन ताकि लोग तो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ घर के काम सीखने चाहिए। ये समाज की पुरानी सोच है और लोगों को कहने से तुम अपने भविष्य को मत रोको। अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हें अपने देश में हो रही गतिविधियों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी और तुम अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर
मिलेगी और तुम अपने देश के निर्माण में अपना योगदान कर सकोगी। आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिली है और मैंने पढ़ाई करने का निर्णय लिया है। थैंक यू। I am Kamakshi Sahani from class 9th. Ding dong. कौन आ गया? पापा आप आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ मेरी प्रिंसेस, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। ओह, तो आप आ गए। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए आपके लिए पानी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। आप रुकिए, मैं देखती हूँ किसका कॉल है। हेलो, क्या संदीप सिंह से बात हो सकती है? जी हाँ, मैं आपकी अभी उनसे बात कराती हूँ। सुनिए, आपके लिए किसका कॉल है? हेलो, यस सर। संदीप सिंह, आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है। बांग्लादेश के कुछ आतंकवादियों ने हमारे इंडियन बॉर्डर पर कब्जा करने की कोशिश की है। आपकी उपस्थिति हमें आज जल्द से जल्द चाहिए। यस सर। बेटा, मुझे जाना होगा। नहीं, आप अभी तो आए थे। मैं आपको अभी नहीं जाने दूंगी। नहीं पापा, आप अभी आए थे। नहीं, मेरे देशभक्ति सबसे पहले है। तो साथियों, हमारे प्लान के मुताबिक इस जगह से इंडियन बॉर्डर पर घुसने का बिल्कुल सही रास्ता है। तो क्या कहते हो? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल। अब हम इंडियन बॉर्डर पर कब्जा करेंगे। जल्दी से सारे हथियार मंगाओ। जी हुजूर, बिल्कुल। हेलो, हाँ हाँ, सारे हथियार लेके आओ। ये लो हुजूर, सारे हथियार लेके आया हूँ। राजीव उठो, राजीव, संदीप, संदीप उठो, संदीप। हाँ बेटा, कुछ दिनों में तुम्हारे पापा तो आ ही जाएंगे। ट्रिंग 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 ट्रिंग। रुको, मैं देखती हूँ किसका कॉल है। हेलो, क्या संदीप सिंह की वाइफ से बात हो रही है? जी हाँ, मैं ही उनकी वाइफ हूँ। क्यों, क्या हुआ? हमें गर्व है संदीप सिंह पर कि उन्होंने बहुत ही सहनशीलता से उन सारे आतंकवादियों को मार गिराया, पर इस लड़ाई में वह देश के लिए शहीद हो गए। हमें गर्व है उन पर, परंतु बहुत ज्यादा दुख भी है। नहीं हो सकता। नहीं, पापा नहीं।
I am Rinal Verma from class 12A. हे जगत पालनहार, कृष्ण ने फिर से सारी मटकियां तोड़ दी। अब कहां से लाऊंगी मैं इतना सारा माखन? मैया, मुझे भी थोड़ा सा माखन दो ना मैया। नहीं कृष्ण, तुमने माखन की सारी मटकियां तोड़ दी, अब तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। पर मैया, मुझे तो माखन खाने का मन हो रहा था मैया, तभी तो मैंने माखन की मटकियां तोड़ी। नहीं कृष्ण, अब तुम्हें दंड मिलेगा। मैया, मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए ना मैया, मुझे ऐसे बांध के ना रखें। मैया, कृष्ण ने हमारी भी मटकियां तोड़ दी। कृष्ण, तुमने गोपियों के घर में भी मटकियां तोड़ दी, ये बहुत बुरी बात है। मैया, पर हमें बुरा नहीं लगा कृष्ण ने हमारी मटकियां तोड़ी। आप कृष्ण को हमारे साथ वन में खेलने के लिए भेज दो ना मैया। हाँ मैया, मुझे भेज दीजिए ना गोपियों के साथ वन में खेलने के लिए, मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हजरत महल अवध की रानी, मैं ब्रिटिशों के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। तुम सिर्फ एक औरत हो, तुम ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध नहीं कर सकती। मैं एक औरत हूँ, लेकिन अवध की रानी हूँ। मैं अपने लोगों के हक के लिए लड़ूंगी। हम तुम्हें एक उदार प्रस्ताव दे रहे हैं, अपना आत्मसमर्पण करो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। नहीं, मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगी, मैं अंत तक लड़ूंगी। मूर्ख औरत, तुम्हारी इस अवज्ञा का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं मौत से नहीं डरती, मैं अपनी स्वतंत्रता खोने से डरती हूँ। जब तक मेरे पास मेरा जीवन है, जब तक मेरे हाथ से खून बहता है, तब तक मैं स्वतंत्रता का कारण नहीं छोड़ूंगी। मैं स्वतंत्रता के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और मैं केवल एक महिला हूँ, माना मैं केवल एक महिला हूँ, मैं केवल एक कवित्री हूँ, मगर एक महिला के रूप में मैं तुम्हें विश्वास और साहस एवं लड़ने की दाद देती हूँ। माना मैं कवित्री हूँ, लेकिन एक कवित्री के रूप में मैं तुम्हें गीत, ध्वनि की आवाज देती हूँ। मेरा जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था। मैंने 12 साल की उम्र में ही एक बहुत प्रभावशाली नाटक भी लिखा था और मद्रास विश्वविद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपनी छात्रवृत्ति अर्जित की थी। और फिर जब मैं वहां से वापस आई थी, तब मैंने इंग्लैंड से भी शिक्षा प्राप्त की और वहां से आने के बाद मैंने कई कविताएं लिखी जिसकी सराहना पूरे संसार में हुई। और फिर लेकिन उसी समय वहां पे कई चीजें बदल रही थी, हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे जो कि अंग्रेजों के कारण हो रहे थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, मैंने उसके लिए भी आवाज उठाई। बंगाल विभाजन बहुत अन्यायपूर्ण था, परंतु मैंने उसके लिए लड़ी और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैंने कई आंदोलन किए, लेकिन जब समय आया अपना असली रूप दिखाने का और गांधी जी और नेहरू जी को उनके नमक सत्याग्रह से जेल में बंद कर दिया गया था, तब हमने अपना आखिरी पहलू दिखाया जो कि ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। आगे की लड़ाई हम महिलाएं करने वाली थी और उसके बाद मैंने विद्रोह की एक ऐसी लड़ी बनाई जिसे दबाना असंभव था। सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हमारी लड़ाई को एक गति मिली और मेरी उपस्थिति ने उसको काफी गति भी दी। सर थैंक यू। साथियों, बैसाखी के त्योहार पर कल हम सब जाने वाले बाग में इकट्ठा होकर बैसाखी मनाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ब्रिटिश सरकार कहां से आ गई? जब लोगों ने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सोल्जर्स टेक पोजीशंस, फायर। भागो भागो भागो। बेबे बेबे कहाँ है बेबे तू? बेबे बाबू बेबे 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 क्या बेबे बेबे आपको बेबे बेबे बाबू बेबे आपको बेबे 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 आपको बेबे बेबे आपको बेबे। March 1940, General died. So, ladies and gentlemen, it is not our right, but it's our duty to rule India. Without us, they will return to savagery, looting and killing one another. Not only Africa, ladies and gentlemen, with the benefit of my experience, I can tell you that these reforms have been effective. The country is in fine mode. It's peaceful. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So, Senator, I'll shot him. Follow. Jai Hind! Thank you. I am Raghav Verma from class 10th. I am representing a character of Mirabai. ये विश्व का तालाब देख रहे हैं गिरधर, राणा को लगता है और राणा कहते हैं कि ये विश्व का तालाब आपके प्रति मेरे प्रेम को डगमगा देगा। क्या ऐसा संभव है? उनको लगता है कि आपके प्रति मेरा प्रेम सच्चा नहीं है। क्या ऐसा संभव है? मैं तो बचपन से ही आपकी प्रेम में लीन हूँ। आपके प्रेम और आपकी भक्ति में ही लीन हूँ। ऐसा संभव हो सकता है कि आपके प्रेम में मैं डगमगा जाऊँ? ऐसा हो सकता है कृष्ण? मैं तो बचपन से ही आपके प्रेम में लीन रहती हूँ। राणा को लगता है कि अब मैं ये विष का पहला, ऐसे विष के पहले तो आपके प्रति एक या लाखों विष के पहलों को गले लगा लूँ। मैं तो जीवित रहकर भी आप ही की हूँ और मरकर भी आप ही की रहूँगी। जय श्री कृष्ण। Good morning to everyone. Myself Shara from class 9C. भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा दी गई है और तुम कह रहे हो ये बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारी उम्र में तो लोग अपने फ्यूचर के लिए सपने देखना शुरू करते हैं। सपने तुम्हारे
मुझे पता है हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। Myself, Sonia Gupta from class 10C. Today I am here to deliver you the act on the topic of Bhagat Singh Ji. तो सभी गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला लेता है कि भगत सिंह जी और उनके 3 साथियों को फांसी की सजा दी जाएगी। भगत सिंह, कोर्ट का आदेश है कि तुम और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है साहब जी। What? ये कोई खुशी की बात है कि कोर्ट तुम्हें फांसी दे रहा है? तुम्हारी अभी एज ही कितनी है? इस एज में तो मैं अपने ड्रीम्स को बारे में सोचता है और उन ड्रीम्स को पूरा करने के ट्राई करता है। साहब जी, मैंने तो ड्रीम अपने बचपन में ही देख लिया था और वो था आजादी। ये मिट्टी को देख रहे हैं आप? What? ये ड्रीम तुम्हारी मिट्टी है? साहब जी, ये ऐसे वैसे कोई मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी है उस जलियांवाला बाग की जिधर आपके जनरल डायर ने हमारे बेगुनाह देशवासियों को गोलियों से मार दिया था। ये वही जलियांवाला बाग है जिधर हमारे सारे परिवार को मार डाला गया था और इसी मिट्टी में हमारे बेगुनाह देशवासियों का रक्त है जो कि मैं हमेशा अपने साथ में रखकर चलता हूँ, जिससे मैं अपने सारे सपने, अपने मकसद को हमेशा याद दिलाता रहूं कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है आजादी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस फांसी से इंडिया आजाद हो जाएगा? साहब जी, मुझे इतना तो नहीं पता कि इंडिया आजाद होगा कि नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी जान खाली मूली में नहीं जाएगी। अच्छा, ये बताओ, तुम तो इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, बस तुम एक बार हमारे गवर्नमेंट को एपोलोजाइज लेटर लिख के दे दो तो हम अपने ऑफिसर से बात करेंगे और तुम्हारी फांसी को कैंसिल कर देंगे। साहब जी, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं मात्र 3 साल का था तब मेरे चाचा जी इस देश के लिए शहीद हो गए थे और जब मैं मात्र 7 साल का था तब मेरे गुरुजी ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो ये आप सोच लीजिए कि जब एक लड़का इतनी कुर्बानियों में पला बड़ा है तो वो आपकी इस घटिया सी गवर्नमेंट के मैं अपना माफीनामा आपको दूंगा। एनीवेज, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, बट एक कोर्ट का ऑर्डर आया है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी फांसी 24 मार्च को थी, लेकिन अब उसे 23 मार्च कर दिया गया है। तो कल शाम तुम्हारी फांसी है। तुम्हारे पास आज रात और कल का आधा दिन है। तुम मुझे सोच के बताना, तो मैं ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारी फांसी कैंसिल कर दे। साहब जी, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मेरा फैसला अटल था, अटल है और अटल रहेगा। अगले दिन शाम को 7:30 बजे। बताओ भगत सिंह, तुम्हारा क्या फैसला था? साहब, मैंने जो बोला वही फैसला था। मेरा फैसला निश्चित है। ठीक है भगत सिंह, तुम्हें अगर हमारा ये सपोर्ट नहीं चाहिए तो ना लो। वैसे तुम्हारी फांसी का समय हो चुका है। तुम्हारी कोई लास्ट विश? नहीं साहब जी, बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया को आजादी जरूर मिलेगी। हैंग दिस मैन। इंकलाब जिंदाबाद।
जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्नों बाधा को चुम चुम सैदों पानी पत्थर पांडव आए कुछ और बिखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें अभी क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमत पढ़ाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर हो आए। पांडव का संदेश आता है, दो न्याय यदि तो आधा, तो इसमें भी यदि बाधा हो तो दे तो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, भजन राशि को खाएंगे। दुर्योधन का भी ले न सका, वासी समाज की ले न सका, उल्टा हरि को मानने चला, जो था साथ साथ नहीं चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को तो होकर बोले, इंजीर बड़ी क्या लाया है जो मुझे कब साथ पाया है। दुर्योधन बांग मुझे। इतना सुनकर हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और बोले, दुर्योधन बांग मुझे। सुप्रभात, मैं कक्षा 12A की छात्रा तान्या पांडे। मैं लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, अपनी झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान श्री राम और रावण के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच, पर आज राजपूत और खिलजियों के बीच। पर हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। मैं झांसी की रानी आज ये शपथ लेती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं अपनी झांसी की सेवा करूंगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। आप झांसी तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप झांसी पर राज करना चाहते हैं और मैं अपनों की सेवा करना चाहती हूँ। जब बेटी खड़ी होती है तब जाके कहीं विजय बड़ी होती है। मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी के लोगों की सेवा करूंगी। मैं धरती माँ की बेटी हूँ और अपने झांसी के लोगों की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। हर हर महादेव। धन्यवाद। एक्ट जो था, हुकूमत वो होती है जो दिल से अपनाई जाती है, ना कि तलवार की जोर से मनवाई जाती है। ये जमीन ऊपर वाले ने बनाई है, इस पे सभी का हक बराबर है। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुगल आमेर की राजकुमारी या मलिका यतीम हो। यदि आंसू देने का साहस रखते हैं तो आंसू देने का भी साहस रखिए। अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय था जब हम आपसे घृणा करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आप वो हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, हम वो हैं जो आपके निर्णय पे विश्वास करने लगे हैं। आदेश पात्रों की आवश्यकता दासियों को होती है, रानियों को नहीं। थैंक यू।